ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड ट्राइगोन, ट्राइगोनॉन, इट मीन्स ट्राइएंगल। एंड मीट्रॉन, इट मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट तो इसका मतलब ट्राइंगल की मेजरमेंट से हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो है एंगल। एंगल क्या है? एंगल हम देखते हैं कि दिस इज O point and this point is A, and this OA point rotates about point A, it reaches at point B। अगर इसको हम ऐसे OA को ऐसे रोटेट करते हैं थ्रू सम थीटा, then this rotation and this OA is इनिशियल रे। तो अगर हम इनिशियल रे कहेंगे एंड रीचेस एट द पोजीशन OB, this position is called terminal ray। So these are also called the sides of the angle। So this rotation is anti-clockwise। This rotation here is anti-clockwise। When rotation is anti-clockwise, angle AOB is a positive angle, and this point O is point of rotation। तो बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो एंगल जब OA थ्रू सम थीटा rotate about point O to position B, this measurement is called angle, and angle will be positive when rotation is anti-clockwise। And second, if rotation is clockwise, suppose O is the point of rotation, A is the initial ray, and this rotate in clockwise direction, and A point reaches at B through some theta, then this measurement angle AOB will be negative and rotation about O point, O is about O is clockwise। ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, एंगल नेगेटिव माना जाता है। सेम दिस इज इनिशियल रे, दिस इज अ टर्मिनल रे। नाउ see the types of measurement of angles। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल।
तो हम यहाँ एक पढ़ेंगे डिग्री मेजरमेंट, या डिग्री मेजर, इसको हम हेक्साडेसिमल मेजर भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज हेक्साडेसिमल मेजरमेंट। एंड सेकंड इज रेडियन मेजर। या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर। नाउ दिस डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर देखिए, एक हम सर्कल बनाते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए सर्कल whose center is O, like this. Now if in a complete rotation 1 upon 360th part of complete rotation, is a 1 degree. It means, suppose this is a circle and this is A point. A, we start from A on this circular path and reach here again. And if we divide this into 360 equal parts, then one part will be equal to 1 degree. Again, सुनिए कि अगर हम इस पूरे सर्कल को ऐसे अगर 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल 360 parts, then one part 1/60th means one part will be 1 degree. तो ये हो गया हमारे पास, और 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. इसको हम ऐसे लिखते हैं। Now the second is a radian measure. तो रेडियन मेजर के लिए दोबारा देखिए, ऐसे अगर हम एक रेडियन मेजर, इसमें हम एंगल के लिए हम देखिए एक सर्कल कंसीडर करते हैं। O is the center, R is the radius, and suppose R is this, and this length of the arc L is also R. Then this measure theta. The formula is theta is equal to length of arc upon radius of circle. So angle subtended by this AB arc at the center will be length of this arc upon R. So 1 radian will be this length upon R, means R upon R is equal to 1. Now see the circumference. Understand again, circumference of circle
of circle is 2 pi r. Now if the rotation, if this length is, then theta will be. Complete rotation means length of arc upon radius, means if L is equal to the total complete revolution, means circumference equal to the circumference upon r will be 2 pi. It means अगर हम यहां से चलते हैं ऑन द सर्कल, रोटेट करते हैं कंप्लीट, देन हेयर एंगल विल बी 2 पाई रेडियन, और इसका हाफ हो गया, अगर इसका हाफ करें हम तो यहाँ पाई रेडियन, और इसका 1/4 विल बी पाई बाई 2। अगर 2 पाई का हम 2 पाई अपॉन इसका चौथा हिस्सा लेते हैं तो हमारे पास पाई बाई 2 आ जाता है। अगर इसका हाफ कर लें, 2 पाई का हाफ कर लें तो पाई आ गया। हाफ मीन्स यहाँ सेमी सर्कल, और यहाँ पे अगर 3/4 लिया जाए तो 2 पाई अपॉन 3, तो मीन्स 2 पाई अपॉन 3। इट मीन्स यहाँ से 0 रोटेशन इफ थीटा, इफ दिस O इज हेयर तो एंगल इज 0 डिग्री, और 2 पाई यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, पाई की वैल्यू 180 डिग्री बन गई, और यहाँ पे 270 एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, तो ये रेडियन मेजर हो गया। नाउ सी हियर 1 radian is equal to, because पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर इसको 180 डिग्री को हम डिवाइड करें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई ऑन 180 डिग्री अपॉन, इसको पाई से हम डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 radian is equal to approximately 57.2829 degree. Approximate value approximately 57 degree, and 1 degree is equal to pi upon 180 degree, which is equal to approximately 0.1746। ये वैल्यूज का हमें पता होना चाहिए। नाउ सी वेरी क्लियर, 1 radian is always greater than 1 degree, because 1 radian 57 degree, 1 radian is equal to approximately 57। it means 1 radian, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका याद रखना, रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिग्री, 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। नाउ सी नेक्स्ट, कन्वर्सन ऑफ डिग्री इनटू मेजर, कन्वर्सन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू कन्वर्सन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। तो इसके लिए फार्मूला है रेडियन मेजर अपॉन डिग्री मेजर। इस रेडियन के सामने हम पाई लिखेंगे, आसान है याद रखने के लिए। डिग्री के सामने, डिग्री मेजर के सामने हम 180 डिग्री।
देयरफॉर फार्मूला बन गया रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर। नाउ सी हियर, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सम ऑफ दी कन्वर्सन्स। यहाँ अगर 0 डिग्री है तो 0 रेडियन के बराबर होता है 30 डिग्री पाई अपॉन 6, 45 डिग्री पाई अपॉन 4, 60 डिग्री पाई अपॉन 3, 90 डिग्री पाई अपॉन 2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री पी पाई अपॉन 2, 360 डिग्री 2 पाई। Now see, we will see here some example how to convert. For example, convert ten degree into radian measure. Now see how to convert रेडियन मेजर। अगर रेडियन मेजर लिखना हमने ऐसे, तो इसके सामने पाई लिखना है, डिवाइड कर देना है 180 डिग्री से और मल्टीप्लाई कर देना है डिग्री मेजर। याद रखने का सिंपल मेथड डिग्री मेजर। रेडियन के सामने पाई लिख दिया। अब देखिए यहाँ पाई लिख दिया मैंने, 180 डिग्री लिख दिया, यहाँ 10 डिग्री लिख दिया, कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू पाई अपॉन 18 रेडियन। देयरफॉर 10 डिग्री विल बी पाई अपॉन 18। अब सेकंड देखिए, कन्वर्ट पाई अपॉन 36 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो अब देखिए हम डिग्री मेजर लिखेंगे। अगर जब हम डिग्री मेजर निकालना है, वैसे डिग्री मेजर लिखा और उसके सामने डिग्री ही लिखना है, 180 डिग्री लिखना है और अपॉन पाई करना है इनटू रेडियन मेजर। अब रेडियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, रेडियन मेजर। याद रखने का आसान तरीका है, 180 डिग्री लिख दिया, पाई लिख दिया, इंटू पाई अपॉन 36। पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, 9 से 9 2 जा, 9 4 जा, एंड दिस इज 5 डिग्री। फाइव डिग्री आंसर। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को हम यूज करके डिग्री मेजर को रेडियन मेजर और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल,
trigonometric function is the next topic. Trigonometric functions. First of all, construct a right angle triangle. ऐसे हम समझेंगे बेसिक ऑफ दिस this is a right angle triangle. A, B, C are the vertices of a right angle triangle. O, this is a X. And this is a X. We decide from here the adjacent of this angle A will be perpendicular. This is perpendicular and adjacent to the right angle will be hypotenuse. This is hypotenuse and third side will be the base. Now see one by one the ratios. First of all, see according to the Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square. Sum of squares of sides of a triangle is always in a right angle triangle. Sum of squares of the sides of a triangle is equal to the square of the hypotenuse. Second, first ratio is a sin x. This ratio is a perpendicular side upon hypotenuse side. Second ratio, this third point, cos x is base upon hypotenuse. फोर्थ, अब tan है, फोर्थ रेशो इज tan x, ऐसे 6 बनेंगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फिफ्थ, cot x, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सिक्स्थ, secant x, ये देखिए cos का रेसिप्रोकल h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सेवंथ, cosecant x, h अपॉन p, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. इसके बाद एट्थ पॉइंट, sin x is reciprocal of the cosecant x. Number 1, and cosecant x is reciprocal of sin x, or we can say sin x product of these ratio cosecant x and secant x, sin x and cosecant x is equal to 1. 9th, tan x का रेसिप्रोकल cot x है, cot x का रेसिप्रोकल टेंजेंट x है, और प्रोडक्ट ऑफ tan x इंटू cot x इज 1. ऐसा क्लियर आइडिया माइंड में होना चाहिए. 10th, इन रेशो से हमें पता लग जाता है secant x का
रेसिप्रोकल cos x होता है, cos x का रेसिप्रोकल सीकेंट x है और सीकेंट x इंटू cos x 1 के बराबर होता है। नाउ तो ये बातें हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक सम फंक्शंस हैं, बेसिक्स। इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, construct a right angle triangle again. Suppose this is x, this is right angle triangle, this point is A, this point is B, suppose this point C, this is perpendicular, x के सामने perpendicular होता है, 90 डिग्री के सामने hypotenuse होता है, and third side is base of the right angle triangle. First of all, we know that h square is equal to p square plus b square. Divide both sides by h square. Now, do this. Divide both sides by h square. जब हम h स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा p स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर और यहाँ पे आएगा b स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 1 इज इक्वल टू p अपॉन h, हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन h साइन x होता है, तो ये साइन स्क्वेयर x बन गया और b अपॉन h कॉस स्क्वेयर x होता है। तो फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1। इसको याद रख सकते हैं। नंबर 2, again see h square is equal to p square plus b square. Divide both side by p square या b square से कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बोथ साइड्स बाई बी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा एच स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, यहाँ आएगा बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, यहाँ पर आ गया 1। अब दोबारा अगर हम वैल्यू एच अपॉन बी सीकेंट रेशो होती है सीकेंट एक्स, अब ये स्क्वेयर हो गया और पी अपॉन बी टेन एक्स होता है टेंजेंट स्क्वेयर एक्स प्लस 1। अब हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ये दूसरी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। थर्ड देखिए, अब इसी इक्वेशन में इसी का हम यूज करेंगे थर्ड केस में। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हम पी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाई
पी स्क्वेयर। अब यहाँ पहला बन गया हमारे पास एच स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर, दिस इज 1 एंड बी स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर। अब हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज cosecant square x, this is 1 and this is base upon perpendicular is cot x, तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया। नाउ द आइडेंटिटी बिकम्स cosecant स्क्वायर x माइनस, इसको लेफ्ट साइड में लीजिए, cot स्क्वायर x is equal to 1. These are the three trigonometric identities. तो very important identities, इनको अंडरस्टैंड करना और इनका यूज होता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ट्रिगोनोमेट्री में हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। जो भी हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज हैं उनको हम इनकी वैल्यू अंडरस्टैंड करने लिए वी विल यूज द यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल लेंगे हम। यूनिट सर्कल मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1। तो अब हम यहाँ थोड़ा ज्योमेट्रिकली एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाउ दीज वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे इनकी वैल्यू आती हैं। इंस्ट्रक्ट ए सर्कल। ऐसे हम एक यूनिट सर्कल बना लिया हमने। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। O is the origin of the circle, 1 is the radius. Suppose this point is A, we are at A, and this point is B, this point is C, and this point is D. यदि इसकी ये लंबाई एक्स एक्सिस पर 1 है तो ए के कोऑर्डिनेट 1, 0 बनेंगे, बी के कोऑर्डिनेट 0, 1, एक्स 0 होगा, वाई 1 होगा, और सी के कोऑर्डिनेट -1, 0 होगा, और डी के कोऑर्डिनेट 0, -1। क्योंकि ओ से नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव मेजरमेंट होती है, तो ऐसे इसके कोऑर्डिनेट है। नाउ हियर सपोज वी रीच एट पॉइंट ए एंड डिस्क्राइब एंगल एक्स। सपोज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एक्स। ए रीचेज एट पॉइंट पी। अब इसके कोऑर्डिनेट हम देखेंगे क्या होते हैं। बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1, सो OP इज ऑल्सो 1। OP इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल है ये। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P। अगर P से हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं
90 अंश का कोण, तो दिस इज पॉइंट एम। अगर ये एम पॉइंट है, अब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे ओ एम एंड पी एम की लंबाई बाय यूजिंग दिस ओ पी एम इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओ पी एम ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसमें हम टी रेशो लिख सकते हैं। अब ओ एम अपॉन ओ पी, ओ एम अपॉन ओ पी, इसकी वैल्यू जो है वो कॉस एक्स होगी। देयरफॉर बिकॉज ओ पी इज 1, तो ओ एम की वैल्यू कॉस एक्स आ गई। सिमिलरली पी एम अपॉन ओ पी इज साइन एक्स। अब ओ पी अगेन हमारे पास 1 है, तो पी एम की वैल्यू साइन एक्स आ जाएगी। इसका मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। अब यहां से हम अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ सी हियर, यहां पे एन पॉइंट दिस ओ ए, वी आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए पॉइंट रीचेज एट पॉइंट बी। ऐसे हम ट्रेवल करते हैं और पी के पास पहुंचते हैं, फिर बी के पास पहुंचते हैं, फिर सी के पास पहुंच जाते हैं, फिर डी एंड सो ऑन। ऐसे हम एक कंप्लीट एक रोटेशन देते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 रेडियन। यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो पाई अपॉन 2 हो जाता है, और यहाँ पे पाई हो जाता है। इस बिंदु के ऊपर जब पहुंचते हैं तो 3 पाई अपॉन 2 हो जाता है, और यहाँ पे 2 पाई। और इसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री भी बोलते हैं। यहाँ पे डिग्रीज में 180 डिग्री बोल देंगे, यहाँ पे 270 डिग्री बोल। और नाउ सी व्हेन दिस point we are at point A and reaches at P in the form of cosine T ratios. 1 becomes cos x and 0 becomes sin x. Means angle is 0, x is 0. So we can write here the coordinate in the form of cos and sin. ये हो गया हमारे पास cos 0, साइन 0। अब इसको देखते जाना। अब जब यहां पाई बाई 2 के पास पहुंचे 90 डिग्री के पास, तो यही कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन बिकम्स कॉस पाई बाई 2 कॉमा साइन पाई अपॉन 2। जब यहां पहुंचे तो कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन बिकम्स कॉस पाई कॉमा साइन पाई। जब यहां पर पहुंचे डी बिंदु के पास, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी बिकम्स कॉस 3 पाई बाई 2 एंड साइन 3 पाई बाई 2। अब जब यहां पहुंचे पूरा कंप्लीट रोटेशन के बाद 2 पाई के एंगल के बाद, तो ए के कोऑर्डिनेट बन गए 2 पाई कॉमा साइन 2 पाई। अगेन वैल्यू इसकी जो है वो 1,0 है। अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशो साइन 0 लेते हैं। देखिए यहां से अगर हम साइन को देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 पर 0 है, साइन 90 डिग्री 1 है, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1 है। इसको हम यहाँ इसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ इसकी सहायता से ये हमारे पास बन गया साइन
0 is 0. Number 1, sine 90 degree or pi by 2 is 1. Sine 180 degree is 0. Sine 270 degree is equal to -1 here. And sine 360 degree is again 0. अब अगर दोबारा पूरा कंप्लीट तो देन दीज वैल्यू विल रिपीट। तो यहां से हमें पता लगता है कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में रहती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टी रेशो साइन इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1. द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स lies from -1 to 1. Now similarly cos 0, पहला देखिए cos 0 1 है, cos 90 डिग्री और पाई बाई 2 अगेन 0. सी हियर कंपेयर करिए, cos पाई कंपेयर पाई और 180 डिग्री लिख देता हूं मैं। 180 डिग्री के ऊपर cos जो है वो -1 है। cos 270 डिग्री और 3 पाई अपॉन 2 is 0. See here, this is 0. And cos 2 pi, or you can say cos 360 degree is equal to 1 again. 2 pi is equal to 1 because coordinate of a are 1, 0 here. तो यहाँ हम cos की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ एक बात और देखिए, ऑब्जर्व करिए, व्हेन वी स्टार्ट द सेकंड रेवोल्यूशन वी रोटेट लाइक दिस, द वैल्यूज अगेन रिपीट. इट मीन्स -1 लेस देन इक्वल टू cos x less than equal to 1 means value of cos x lies between -1 and 1 and equal to -1 and 1. -1 से लेकर के 1 तक वैल्यू cos x की वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ एंगल. तो ये सम ऑफ दी वैल्यूज हैं. अब इसके बाद हम देखेंगे some more values of all t ratios at 30 degree. Now see, next topic is values of all t ratios at 30 degree. इसको हम प्रूव करेंगे. तो वी विल कंस्ट्रक्ट ए यूनिट सर्कल. से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि थोड़ा दिस इज ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. We will construct a unit circle to understand the value of all the t ratios. Again see here, this is a unit circle, means radius is 1. Suppose this is a 30 degree angle in the anti-clockwise direction. Suppose this is point P, this point is A. Draw a perpendicular on x-axis. Now see here, if we extend this point to here, we are extending this point here up to Q point and join O with the Q, this angle will be 30 degree. ड्यू टू सिमेट्री. ये 90 डिग्री है.
अब अगर ये 30 डिग्री है, this angle will be of 60 degree, and in this OPQ, in triangle OPQ में देखिए, due to symmetry, this triangle, all angles are of 60 degree, because this is 90 degree, 30 degree, so इस triangle में ये 60, because sum of the three angle is 180 degree. All angles means angle O, angle P, this angle, and angle Q are of 60 degree, or you can say pi upon 3. Now हमने 30 डिग्री को स्टडी करना है, to see in this is 1 because of unit circle. Triangle OPQ is a equilateral triangle. ये equilateral triangle बन गई. All the angles are same, means of 60 degree, means OP is equal to, all the sides will be equal. OP is equal to, इसका मतलब है OP is equal to OQ is equal to PM, and this point is the midpoint PM. This is OPQ. OP is equal to OQ is equal to PQ. लिखना है PQ and equal to 1. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, due to all the, because all the angles are same, so this is a equilateral triangle. अगर equilateral triangle है, it means all the sides are equal. Therefore see here, M is the midpoint of PQ, of PQ. It means PM is equal to MQ, means length is half. It means PM is half. Now see, sine of, in a, this is a triangle OPA is a right angled triangle. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. इट मीन्स OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. इस ट्राइंगल में OPM में OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. अब यहां से इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा. OM जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करना है. PM 1/2 होल स्क्वायर हो गया. इट मीन्स OM स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4. ट्रांसफर कर दें दूसरी साइड में. This is equal to 3/4, which means OM is equal to √3/2. अब यहां से हमारे पास OM भी पता लग गया. PM is 1/2 and OP is 1. Now we will see the values of, we will calculate the values of the trigonometric ratios. Now see, sine
30 degree will be perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse means PM upon OP, और PM की वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1 है। साइन 30 डिग्रीज 1/2। सेकेंड रेशो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है OM अपॉन OP, √3/2 upon 1 means √3/2. Tan 30 degree is equal to perpendicular upon base, which is equal to PM upon OM. PM upon means 1/2 divided by √3/2 is equal to 1/√3. Cot 30 degree is reciprocal of the tan means √3. Secant 30 degree is reciprocal of the cos means 2/√3. Cosecant 30 degree is equal to the reciprocal of sine means 2/1 means. So these are the values of the all 6 trigonometric ratios at 30 degree. Now we will calculate the values of all the values of tan. Values of all 6 T ratios at angle 45 degree. Again construct a unit circle. इसको भी हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे कि unit circle means the radius of the circle is unit. Again construct, अब हमने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेना है. This point is P. Draw a perpendicular PM. This point is A. This is B, C, E. This is x-axis. This is y-axis. ये y-axis हो गया. This is center. Now triangle OPM is a right angled triangle. तो इसको समझें. अब एंगल हमने 45 का लिया है. दिस इज यूनिट सर्कल, सो OP इज ए रेडियस विच इज 1, को हम 1 लेंगे. नाउ सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, if this is 45 degree, this is 90 degree, sum of the three angles is a 180 degree. So this angle P will also be of a 45 degree, or you can say pi/4. Now triangle OPM is a isosceles triangles whose two sides are equal, because this angle O is equal to, ये 45 का है, 45, it means OM is equal to PM, because adjacent opposite sides are equal. Opposite angles are same, so opposite sides are equal. तो यहाँ हम opposite बोलेंगे.
के सामने की साइड्स इक्वल. नाउ see here, in the right angle triangle, OP square is equal to PM square plus OM square. Put the values here. OP square is equal to PM square plus PM square. OP is 1 and this is 2 PM square. PM square is equal to 1 upon 2. PM is equal to 1 upon root 2. Therefore, OM is also 1 upon root 2. Now, the other 6 key ratios are sine 45 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse means 1 upon root 2 upon 1 means 1 upon root 2. Cos 45 degree is equal to base upon hypotenuse is equal to 1 upon root 2 upon 1. Again 1 upon root 2. Tan 45 degree is perpendicular upon base is equal to 1 upon root 2. 1 upon root 2 is equal to 1. Cot 45 degree is equal to P upon P, again 1. Secant 45 degree is equal to reciprocal of this is root 2. Cosecant 45 degree is equal to root 2.